Hello, students. All of you are welcome in this YouTube channel, and we are over here studying our syllabus through online classes. And students, as we all know that nowadays we are studying grammar, and in our last chapter, I had talked about, I had started our auxiliaries. I mean, auxiliary verbs are helping verb, and in the sequence of auxiliary verbs in the last class I had taken the primary auxiliaries that included be or have or do. In the same sequence, our next class we are going to start, and this class is regarding the modal auxiliaries. Today we shall study the modal auxiliary. So the very first thing that is required is to know what an or what a modal auxiliary or what a modal verb is. So students, you must have seen various times the use of can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to. These all are the modal auxiliaries. Okay, they are called modal verb or modals. They are used before ordinary verbs and express meanings, and they express meaning just like permission, determination, will, possibility, necessity, probability, threat, certainty, and a lot more. Okay, so these all things are expressed by the modal auxiliaries. Let us try to discuss some of the characteristics of modal auxiliary. The very first characteristic of modal auxiliary is that modals are never used alone. Yes, it is very important to note it down. जैसे कि हम लोगों ने प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में देखा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी जैसे कि बी के फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, या डू के फॉर्म है डू, डज, डिड। ये कभी कभी अकेले भी आते हैं, लिंकिंग वर्ब्स में अकेले आ सकते हैं, और कुछ एक केस में तो मेन वर्ब में अकेले आता है। आई मीन कौन से प्राइमरीज जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी है। लेकिन आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आई मीन दिस modal auxiliary. Modal auxiliaries will never come alone. They are always used with the principal verb. For example, I shall go. They must come. So here go is used with shall and come is used with must. Okay. So shall and must are the modals, while go and come are the principal verb. Second important point is they are termed as defective verbs. इनको हम लोग ग्रामर में डिफेक्टिव वर्ब्स के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें नहीं होती, इसमें मिस करती हैं। जैसे कि ज़्यादातर जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उनमें एस फॉर्म होता है, स्पेशली थर्ड पर्सन में सिंगुलर वर्ब में यूज करने के लिए। फिर इनका कोई इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं होता, इनका कोई आईएनजी फॉर्म नहीं होता, और इन्हीं सब कारणों से इनको हम लोग डिफेक्टिव वर्ब की संज्ञा देते हैं। चलिए, सो फ्रेंड्स, we are now in position to disclose the names of the main modal auxiliaries. So here whatever auxiliaries we are going to talk are shall, will, should, would, can, could, may, might, must, ought to, have to, had to, used to, need, and dare. These are in total 15 modal auxiliaries, and in this class we are going to talk about them all. I mean about their uses, or in what sense they are used. So in this sequence, the very first part that I am going to take is the
use of can and could. So students, we all know that can is the present or future form, future tense form, while could is the past tense of can. So very first thing, can states ability और कैपेसिटी. कैन जो है किसी चीज की एबिलिटी को दिखाता है या उसकी कैपेसिटी को दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन वॉक टू द होटल, मतलब मैं होटल तक चल के जा सकता हूँ. इट इज़ माई कैपेसिटी और इट इज़ माई एबिलिटी. आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं पूरी नदी तैर के पार कर सकता हूँ. या मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ, या क्या आप ये बॉक्स लिफ्ट कर सकते हो? कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स? सो इन दिस वे these all sentences are stating the ability or capacity. It is also used to indicate permission. Yes, especially for giving permissions. For example, you can go to the party tonight. And if we want to take permission, even in taking permission also can is used. For example, can I borrow your umbrella, or can I take your pen, can I use your copy? In this way, the third very important use of could, it must be observed very carefully. could is used for a request. could का यूज रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है. ठीक है, कुछ एक केसेस में, सर्टेन केसेस में अगर हमें रिक्वेस्ट करना है तो रिक्वेस्ट के केस में भी हम could का यूज करते हैं. एग्जाम्पल है, could I go to the party tonight? could you please check my copy? हियर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि could से हमने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि क्या आप हमारी कॉपी चेक कर देंगे. ओके, सो इट इज स्पेशल यूज ऑफ could. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ कैन in indirect speech. Yes, we all know that whenever past tense of can is required, we use could. For example, you said you could help me, or I told them that they could not attend the party. So here could is the past equivalent of tense can. could is also used to indicate ability in the past. जैसा हम लोगों ने can के केस में पढ़ा कि can जो है क्या शो करता है, can हमारी एबिलिटी को शो करता है, किसी काम को करने की हमारी जो एबिलिटी है उसको शो करता है. तो could भी एबिलिटी शो करेगा पास्ट के केस में. he could dance well when I last met him. okay, or she could make 10 meters long jumps in her youth. ओके, तो ये क्या शो करता है, ये उसकी पास्ट की एबिलिटी को शो करता है. कुछ बातें हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान देने की हैं. पहली बात ये कि जो कुड है वो केवल एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है कि उस काम को करने की उसकी एबिलिटी है या नहीं. एबिलिटी को जो दिखाता है, लेकिन उसके उस काम के परफॉर्मेंस को नहीं दिखाता. मतलब अगर हमें परफॉर्मेंस को भी दिखाना है, उसकी एबिलिटी तो है वो करने की, लेकिन क्या वो वास्तव में उसे कर सकता है? एबिलिटी होना दूसरी बात है और उसको परफॉर्म कर पाना दूसरी बात है. तो अगर उसके परफॉर्मेंस को भी, मतलब कि एबिलिटी तो है लेकिन क्या उसको उसने परफॉर्म किया, अगर उसके परफॉर्मेंस को भी ऐड करना है, तब वहाँ पे बेहतर होता है कि वॉज या वर एबल टू का यूज़ किया जाए. जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो वॉज या वर एबल टू के बारे में बात की गई है कि अगर एबिलिटी के साथ उस ये भी दिखाना है कि उसने उस काम को किया भी, तब वहाँ पे वॉज या वर एबल टू का यूज करना चाहिए.
वेरी सेंसिटिव इन द यूज ऑफ इट। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, वेन द बोट वॉज अपसेट वी वर एबल टू स्विम टू द बैंक। इसका मतलब जब बोट अपसेट हो गई तब हम तैर के किनारे तक पहुंचे या पहुंच पाए। दैट वॉज द कैपेसिटी, दैट वॉज द एबिलिटी, लेकिन अब यहाँ पे परफॉर्मेंस भी दिखा दिया। हाँ, एक बात है कि निगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट में कोई ज़रूरी नहीं, निगेटिव स्टेटमेंट में आप कुड से भी काम कर सकते हैं। आप चाहे तो कुड यूज करें, चाहे वाज या वर एबल टू यूज करें। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आई कुड नॉट सॉल्व द पजल, इट वॉज टू डिफिकल्ट। ओके, या आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द पजल, इट वॉज टू डिफिकल्ट। सो निगेटिव में कुछ भी यूज करें, लेकिन अगर हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, आई मीन पॉजिटिव में, तो वहाँ पर आपको केवल अगर परफॉर्मेंस को भी दिखाना है तब आप वाज या वर के साथ एबल टू का यूज करेंगे। In this way, we are on the next point, that is use of may and might. So students, may is used to ask or express for permission। may से हम जो है परमिशन लेते भी हैं और परमिशन देते भी हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना है कि यही चीज़ कैन के द्वारा भी होता है, लेकिन कैन के कंपैरिजन में मे ज़्यादा फॉर्मल है। ओके, मे आई कम इन, यू मे नॉट अटेंड द फंक्शन, शी मे नॉट सिट हियर, कैन और मे आई बोरो योर अम्ब्रेला। सो इन दिस वे may is also used to express a wish। हाँ, आप लोगों ने स्पेशली ऑपरेटिव सेंटेंस में देखा होगा, वहाँ पे जो है विश किया जाता है, जस्ट लाइक मे यू हैव गुड मॉर्निंग, और मे यू हैव गुड नाइट, और मे यू हैव अ गुड लाइफ अहेड, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैव अ नाइस टाइम अहेड। सो इन दीज ऑल केसेस यू मे फाइंड आउट कि जो विशेष है वो मे के द्वारा एक्सप्रेस की जा रही है। मे का यूज जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए होता है। कैन भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, लेकिन कैन इज यूज्ड इन करस्पॉन्डिंग इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, बेहतर ये होता है कि अफर्मेटिव में जो है मे का यूज करिए पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैन का यूज करिए फॉर द सेक ऑफ possibility। There may be some hope, it may rain tomorrow, he may be at home, can this be true? It cannot be true। So in this way, next use of may is, may indicates a weak possibility whereas might indicates a weaker possibility। possibility केस में मैंने बताया may का भी यूज होता है, पहले बताया ही मैंने, और might का भी यूज होता है, लेकिन मे से तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस होती है, लेकिन माइट से उससे भी कम पॉसिबिलिटी होती है, दिखाई पड़ती है। आई मे कम टुडे, ओके, इसमें तो आने की संभावना कम है, लेकिन अगर हमने माइट यूज कर दिया, सी माइट कम टुमारो, तो इसके आने की जो उसके आने की पॉसिबिलिटी है वो और भी कम हो गई। Might is also used to express a degree of dissatisfaction और approach। yes, असंतुष्टि की डिग्री को दिखाने के लिए, डिससेटिस्फैक्शन की डिग्री को दिखाने के लिए या अप्रोच को दिखाने के लिए माइट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस। आप अपने अपीयरेंस पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे सकते थे, मतलब हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपने जितना किया वो कम था, आपको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था। तो ये चीज़, सी माइट कॉल मी व्हेन सी वॉज इन डेंजर। यस, उसने मुझे कॉल नहीं किया, सो आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ओके, अब उससे मुझे कॉल करना चाहिए था। तो इन दिस वे हम लोगों ने मे और माइट, कैन और कुड का, मे और माइट का यूज यहाँ पढ़ा, इसके पहले कैन कुड पढ़ा था। अभी हम लोग नेक्स्ट पे हैं शैल, शुड, विल, वुड। सो स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल दैट शैल एंड शुड का यूज सबसे पहली बात तो फ्यूचर टेंस में होता है।
जनरल रूल है, हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउंस हैं, ये जितने भी नाउन हैं, सॉरी, फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन हैं, उन सब के साथ शैल का प्रयोग होता है, और जितने भी सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं और जितने भी नाउन हैं, उन सब के साथ विल का प्रयोग होता है। ये बहुत ही, मतलब हम सभी इस नियम से जानते हैं कि आई और सैल के साथ हम लोग सैल का आई और वी के साथ हम लोग सैल का प्रयोग करते हैं, और आई और वी को छोड़ के जितने भी अदर प्रोनाउन हैं या फिर नाउन हैं, उन सब के साथ विल का यूज करते हैं। ये हमारा पहला यूज है, बहुत ही बेसिक बात है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट कम टूडे, यू विल वर्क फॉर मी, ही विल नॉट लिसन टू यू। यहाँ आप सोचते हैं कि आई जो कि फर्स्ट पर्सन का है उसके साथ शैल का यूज हुआ, जबकि यू जो कि सेकेंड पर्सन का है विल का यूज हुआ, ही के साथ विल का यूज हुआ। इसी तरीके से अगर कोई और नाउन होता, इफ देयर वुड हैव बीन यूज्ड एनी अदर नाउन, इन दैट केस आल्सो वी वर सपोज टू यूज विल ओनली। ये सिंपल रूल है, जनरल रूल है। एक नियम और हम लोगों ने पढ़ा होगा शैल और विल के केस में, जहां पर कि हम लोगों ने पढ़ा कि शैल और विल का वाइस वर्सा यूज होता है। मतलब जो कॉमन नियम है वो ये कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ शैल और अदर्स के साथ विल, लेकिन जो वाइस वर्सा नियम है उसके अनुसार क्या है कि आई और वी के साथ विल का यूज, उसके अलावा सब के साथ शैल का यूज होगा। और ये किस केस में होता है? अगर हमें सेंटेंस में प्रॉमिस दिखाना है या थ्रेट दिखाना है या कमांड दिखाना है, तो ऐसे केस में यूज एकदम उल्टा हो जाएगा, शैल और विल का यूज एकदम उल्टा हो जाएगा। ये भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। रूल है, वी कैन आल्सो यूज शैल इन सेकेंड और थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस अ थ्रेट, कमांड और अ प्रॉमिस। इसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यू शैल बी अवॉर्डेड सुटेबली, प्रॉमिस है। ही शैल नेवर शो अप हियर अगेन, इट्स अ कमांड। यू शैल बी पनिश्ड फॉर हिज, इट इज थ्रेट। ही शैल नेवर एंटर माई हाउस अगेन, कमांड। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यू के साथ, ही के साथ आप क्या यूज कर रहे हैं? शैल यूज कर रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद ये जो अगला नियम है, अगर हम क्वेश्चन करते हैं शैल आई और वी, शैल पहले आकर के अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो इसका मतलब है हम जिससे पूछ रहे, हम जिससे बात कर रहे हैं उसका हम क्या चाह रहे हैं, उसकी हम इच्छा जानना चाहते हैं। ठीक है। अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं शैल आई या शैल वी, ऐसे एग्जाम्पल है शैल आई एकम्पनी यू, मतलब हम जिससे बात कर रहे हैं यानी यू से बात कर रहे हैं, हम यू की इच्छा जानना चाहते हैं कि क्या मैं उनके साथ आ जाऊं। ये शैल आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूं, मतलब मैं पूछ रहा हूं, आपकी इच्छा है तब मैं आपकी मदद करूंगा। विच पेंसिल शैल आई बाय और वेयर शैल वी गो। इन दिस ऑल सेंटेंसेस आप इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट रूल है, द नेक्स्ट रूल इन दिस मैटर इज विल इज यूज टू एक्सप्रेस अ वोल्यूशन। विल का यूज वोल्यूशन के केस में आता है। अब आप पूछ सकते हैं कि आखिर वोल्यूशन क्या है? व्हाट इज वोल्यूशन? So students, volition is the power to choose something freely or to make your own decisions. तो आपके अंदर आपकी वो शक्ति जिसके माध्यम से आप स्वतंत्र रूप से कोई काम चुन सकें या निर्णय कर सकें, आपके अंदर चयन करने की क्षमता हो जाए या फिर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हो जाए, इस बात को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्यूशन कहते हैं। Are you clear with me? So, students, in this way we can say कि in this by use
we may express our willingness or our promise or our determination. Okay, for example, I will not come today. It's my uh, determination or my will. I will carry your books. It's my willingness. I will try to do better next time. It's a promise. I will try to succeed or die in the attempt. Okay, so it is a determination. Okay, so students, next rule regarding use of uh, it is it can also be used to, I mean, will can also be used to indicate a characteristic habit. Yes, uh, किसी कैरेक्टरिस्टिक हैबिट को दिखाने के लिए भी विल का होता है. ही विल ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफी एज यूजुअल, मीन इट्स हिज कैरेक्टरिस्टिक हैबिट दैट ही टेक्स अ कप ऑफ कॉफी. ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, वो फिल्मों के बारे में ही बात करेगा और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेगा. मतलब ये है कि ये उसकी हैबिट है. शी विल सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस. यस, वायरलेस सुनते हुए वो घंटे बैठे रहेगी क्योंकि ये उसकी आदत है. सो हैबिट दिखाने के लिए आपने विल का यूज़ किया. इन द सेम वे विल यू, अगर कहीं पे क्वेश्चन रेज होता है विल यू जो क्वेश्चन है ये इंडिकेट करता है एक इनविटेशन को या एक रिक्वेस्ट को. इट एक्सप्रेसेस एन इनविटेशन और अ रिक्वेस्ट. So, for example, you may find out over here, just like, will you attend my cousin's wedding? It's an invitation. Will you have tea? It's also an offer or invitation. Will you lend me your scooter? It's a request. Next point is assumption or probability is expressed by will. Will के माध्यम से assumption या probability को हम दिखाते हैं. This will be the book you want, I suppose. या फिर that will be the postman, I think. ये what is this? It is the assumption or probability कि वो postman होगा या फिर ये आपकी बुक होगी, ऐसा मुझे लगता है. Okay, so express assumption or probability we use will. In the next, in clauses that start with if, should is used to express a supposition that may not be true. ऐसे क्लॉजेस में जो कि if से शुरू होते हैं वहाँ पे जो should है, should एक सपोजिशन को दिखाता है, ऐसी सपोजिशन को जो कि सही नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट शुड रेन द मैच विल बी कॉल्ड ऑफ. अगर बारिश हो जाती तो निश्चित तौर से मैच रोक दिया जाएगा. इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम. अगर बारिश हो जाती है तो नहीं आएंगे. इफ ही शुड सी मी हियर ही विल बी इनवाइटेड. इन दिस केस, इन दिस ऑल, मीन ऐसा होगा नहीं, सच नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऐसा ज़रूर हो जाएगा. ये एक सच ना होने वाला सपोजिशन है. अगला जो यूज़ है शुड का, वो दिखाता है, हम सभी जानते हैं कि शुड के माध्यम से हम लोग ड्यूटी या ऑब्लिगेशन को शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ओबे आवर लॉज. ये इट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर लीगल ऑब्लिगेशन. यू शुड कीप योर प्रॉमिस. ओके, एंड चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स. इन सब में हम ड्यूटी या ऑब्लिगेशन को शो कर रहे हैं. अगला पॉइंट है वुड को यूज करने के बारे में. स्टूडेंट्स, वुड का यूज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ज़्यादातर बुक्स में भी आपको इतनी प्रॉपर वे में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बड़े अच्छे से देखिए. वुड का यूज पहली बात तो डिज़ायर या इंक्लिनेशन शो करने के लिए होता है. वुड इट इज़ यूज्ड फॉर टू शो डिज़ायर और इंक्लिनेशन. For example, I would love to live here. Would you like some coffee? What I would really like is some tea. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा डिज़ायर क्या है या हमारा झुकाव किस तरफ है.
इसको दिखाया गया। वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट में किया जाता है और पोलाइट क्वेश्चंस में भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू ओपन द डोर प्लीज। आपको पता है वुड यू ओपन द डोर प्लीज ये ज्यादा पोलाइट है ओपन द डोर प्लीज से। तो अगर आपको इंपरेटिव फॉर्म में जो रिक्वेस्ट का फॉर्म होता है, ओपन द डोर प्लीज, सिट डाउन प्लीज, उससे ज़्यादा पोलाइट है आप ये कहें वुड यू ओपन द डोर प्लीज। वुड यू गो विथ मी, इट्स मोर पोलाइट, विल यू गो विथ मी। ओके, वुड यू नो द आंसर, या वॉट वुड द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया बी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे वुड के माध्यम से अदर जितने भी फॉर्म्स हैं रिक्वेस्ट करने के, उन सबसे ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट किया गया। अगला यूज, वुड का यूज ओपिनियन या होप शो करने के लिए होता है। वुड इज यूज्ड टू शो ओपिनियन और होप। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड इमेजिन दैट दे विल बाय अ न्यू वन, इट्स एन ओपिनियन, इट्स होप, कि मैं इमेजिन करता हूं कि वो एक नया चीज खरीदेंगे। आई सपोज सम पीपल वुड कॉल इट टॉर्चर, आई वुड हैव टू एग्री, आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू कम। इन सब में क्या है, what do these also they show opinion or hope. Since you ask me, I would say the blue one is best, it's opinion. Next use is wish करने के लिए। I wish you would stay, wish meant इच्छा जाहिर करने के लिए। ओके, I wish, आप, मेरी इच्छा है कि आप यहाँ रुके। आई रियली वॉन्ट यू टू स्टे ओवर हियर, आई होप यू विल स्टे। ओके, दे डोंट लाइक मी, आई एम श्योर दे विश आई वुड रिजाइन, दे वुड दैट आई वुड रिजाइन। देखिए यहाँ पर जितने भी जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, नोट दैट ऑल दीज यूजेस ऑफ वुड एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ डिस्टेंस। ये किस थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाने का प्रयास कर रहे हैं या रिमोटनेस दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो रिमोटनेस क्या है, रिमोटनेस इन टाइम, रिमोटनेस ऑफ पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, और रिमोटनेस बिटवीन स्पीकर्स, दैट इज फॉर्मेलिटी, पोलाइटनेस। इन सब में एक डिस्टेंस शो करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, सो वुड के हम अगले यूज चलते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट यूज ऑफ वुड। वुड फॉर प्रिजम्पशन और एक्सपेक्टेशन, प्रिजम्पशन के लिए और एक्सपेक्टेशन के लिए। दैट वुड बी जो कॉलिंग, आई आंसर इट। ये एक्सपेक्टेशन है, ये होप है, ये आशा है कि ये निश्चित तौर से जो कॉल कर रही होगी मैं उसे आंसर दूंगा। जानने के पहले ही, देखने के पहले कि क्या किसका कॉल है, ये प्रिज्यूम कर लिया उसने। ओके, पहले से मान लिया। वुड का यूज अनसर्टेनिटी शो करने के लिए भी होता है। यस, वुड इज यूज टू शो अनसर्टेनिटी आल्सो। ही वुड सीम टू बी गेटिंग बेटर, इन लेस सर्टेन देन ही सीम्स टू बी गेटिंग बेटर। सर्टेनिटी का जो डिग्री है वो कम है यहाँ पे। ही वुड सीम टू बी गेटिंग बेटर। वुड फॉर डेरोगेटरी कमेंट, डेरोगेटरी कमेंट्स के लिए भी इसका यूज होता है। They would say that, would not they? Or John said he did not steal the money. Well, he would not he? So, in these all derogatory comments, would has been used. Would that for regret, would that का यूज regret शो करने के लिए होता है। ये थोड़ा यूज पोएटिक है, रेयर केस में यूज होता है। ये जो रेयर और पोएटिक यूज है, लिटरेरी यूज है, ठीक है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर में आप इसको देखने को नहीं मिलेगा। वुड दैट इट वर ट्रू, काश ऐसा होता कि ये सही होता। वुड दैट आई वर किंग, वुड दैट हिज मदर हैड लिव्ड टू सी हिम।
So friends, in this way, I try to express or explain the use of shall, will, should, would, and especially I have focused over the use of would and all the others. After these, we are to move towards the use of must, have to, had to, and ought to. So first of all, must हम सभी जानते हैं. Must is a modal verb that can be used to express necessity or obligation. Yes, जहां पे obligation कुछ ज़्यादा ही हो, necessity ज़्यादा हो, वहां पे you must come tonight, you must improve your spelling. निश्चित तौर से आप आज रात में आओगे, आपको आना ही होगा. मतलब ये है कि आपको आना ही होगा. You must improve your spelling. You must get up early. These all क्या शो करते हैं? नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को शो करते हैं. अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट है, वो ये कि आपको क्या कुछ पता है कि मस्ट किस टेंस का होता है. देखिए, कैन प्रेजेंट या फ्यूचर को शो करता है, कुड पास्ट को शो करता है, मे प्रेजेंट या फ्यूचर को शो करता है, माइट पास्ट को शो करता है इन जनरल सेंस. लेकिन मस्ट किस टेंस को दिखाता है कि मस्ट का कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं है. यस गाइस, इट्स करेक्ट, इट्स राइट. मस्ट का कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं होता. मस्ट प्रेजेंट या फ्यूचर को शो करता है. मस्ट के पास्ट को शो करने के लिए हैड टू का यूज करता है. इसीलिए यहाँ पे एक टाइटल में डाल दिया गया हैड टू का यूज, क्योंकि हैड टू का यूज ही वही है. मस्ट का जो पास्ट फॉर्म का होता है वो हैड टू होता है. ओके, सो दिस कैन बी सीन ओवर हियर. Yesterday we had to get up early. She had to reach the station at 4 AM. ओके, तो अगर हमें पास्ट में शो करना है तो हम हैड टू का यूज करेंगे मस्ट के केस में. अच्छा, मस्ट से एक बात और देखिए, ऑब्लिगेशन हम सभी जानते हैं कि मस्ट के माध्यम से ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस किए जाते हैं. अब देखो बच्चों, ऑब्लिगेशन की बात करें हम, इफ वी टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, देयर मे बी ऑब्लिगेशन फ्रॉम टू ओरिजिन्स. ऑब्लिगेशंस दो तरीके से, दो जगह से निकल के आते हैं. पहली बात तो एक ऑब्लिगेशन जो कि मेरा अपना आइडिया है, ऐसे कि मुझे लगता है कि अब मैं मोटा हो रहा हूँ तो मुझे अपने जो है वेट को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, तो वो मेरा अपना आइडिया होगा. वहीं पर अगर ऐसा हो कि डॉक्टर अगर हमें कहे कि हमें अपने आप को, अपने वेट को कंट्रोल करना है, तो एक तो ऑब्लिगेशन जो था जो कि हमारे अपने तरफ से था, एक ऑब्लिगेशन था जो डॉक्टर की तरफ से था. अब आप कहें कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है. अगर ऑब्लिगेशन स्पीकर की तरफ से आता है तब मस्ट का यूज होता है, और अगर वही ऑब्लिगेशन कहीं और से आता है जैसे कि डॉक्टर की तरफ से, तब हमें हैव टू का यूज करना चाहिए. वी आर सपोज टू यूज हैव टू. फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट बी ऑन अ डाइट. इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा वेट गेन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे डाइट पे होना है. वहीं पे अगर एग्जाम्पल ऐसा आ जाए, आई हैव टू बी ऑन अ डाइट, इट मीन मेरी समझ में नहीं आया, डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया, डॉक्टर ने कहा है कि अब मुझे डाइटिंग करना है, तो इन दिस केस आई हैव टू बी ऑन अ डाइट. सो इट वॉज अ यूज ऑफ मस्ट. About must, one thing more, we can also use must to express fixed determination. जो हमारा फिक्स्ड डिटर्मिनेशन है उसको शो करने के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट आई विश, और आई मस्ट क्लियर IAS इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट.
She must complete it within the given time. These all uses must, and they all are showing fixed determination. There is one more very important use of must, and that is must can also express logical certainty. लॉजिकल सर्टेनिटी दिखाने के लिए एग्जाम्पल, लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशंस मस्ट बी डिफिकल्ट. यहाँ पे लॉजिक दिया गया, ऐसे क्राउडेड कंडीशन में रहना निश्चित तौर से क्या होगा, डिफिकल्ट होगा. आई एम श्योर इट इज डिफिकल्ट. You will find out that here a reason, a logic has been produced, and with that logic it has been proved that it will be difficult. She must have left already. I am sure she has left already. Okay, so these are all logical. After that, let us talk about ought to. Ought to expresses moral obligation or desirability. We ought to win this. We ought to love our neighbors. We ought to help him. We ought to know better. These all shows our moral obligation, या आपसे ये जो लोगों की डिजायरेबिलिटी है वो एक्सप्रेस की गई. In the same way, ought to can also be used to show probability. Yes, prices ought to come down soon. This book ought to be very useful in this way. In this way, I have tried to use the use of must, have to, or had to as models. Now, use of used to, need, and dare. First of all, let us take up used to. Used to expresses a discontinued habit. Yes, a habit that was in continuation in past, but now it had been discontinued. ऐसी habits को दिखाने के लिए. For example, I used to go to the gym every evening, but I do not go to the gym now, but I used to in the past. There used to be a house there. यहाँ पे एक घर हुआ करता था, बट अभी है नहीं. The same way, I used to live there when I was a boy. मैं वहाँ रहा करता था. So in this way, a habit, a discontinued habit is expressed with used to. If we talk about need, friends, हम सभी जानते हैं कि need एक प्राइमरी वर्ब भी है. नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना. अब नीड अगर प्राइमरी वर्ब है तो, और एक बात यह भी है कि नीड एक मॉडल वर्ब भी है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि मॉडल वर्ब के रूप में यूज करेंगे नीड को तब क्या होगा, और अगर हम प्राइमरी वर्ब के रूप में यूज करेंगे या प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज करेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी बात नहीं कर रहा हूं मैं प्रिंसिपल वर्ब के रूप में बात कर रहा हूं. अगर हम प्रिंसिपल वर्ब के रूप में बात करूंगा तब इसके यूज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. पहली बात तो देखो कि अगर हम नीड को मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में दिखाएंगे तब ये शो करेगा नेसेसिटी को या ऑब्लिगेशन को. अब अभी हम पहला यूज जो बता रहे हैं वो एज मॉडल ही बता रहे हैं, और जब हम मॉडल के रूप में इसको यूज करते हैं उस कंडीशन में हम डू का यूज नहीं करेंगे. स्पेशली अगर हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, हमें सब समय पता है कि डू या डज का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या फिर एस आर ई एस का यूज होता है अफर्मेटिव में, एस आर ई एस का यूज होता है अफर्मेटिव नेगेटिव में, डू डज का यूज होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में ईडी के साथ लग जाएगा नीडेड. लेकिन अगर हम डू के साथ प्रयोग नहीं करते तब आप ये जानिए कि इसमें यस या ईडी फॉर्म नहीं होगा. और यही नहीं, इसको हम एक ऐसी इन्फिनिटिव के पहले यूज करेंगे जहां पर कि टू का प्रयोग नहीं होता है. एक ऐसी इन्फिनिटिव दैट इज यूज विदाउट टू
उस तरह से हम इसको यूज करेंगे। एंड फ्रेंड्स, इन दैट कंडीशन हम इनको निगेटिव में यूज कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव में यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ एक निगेटिव ऐसे भी हैं जिनमें कि नॉट यूज नहीं होता लेकिन स्केर्सली है या हार्डली है, ऐसे सेमी निगेटिव वर्ड्स यूज होते हैं। ऐसे में एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, ही नीड नॉट गो देयर, नीड आई राइट टू हिम, आई नीड हार्डली टेक हिज हेल्प। मतलब यहाँ पे नीड एक ऑक्सिलरी के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसको डू के साथ यूज करते हैं, मतलब एक इसकी जो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज करते हैं, तब नॉर्मल इसका यूज होगा, नीड्स भी बनेगा और नीडेड भी बनेगा। उस कंडीशन में इसको इसका जो इन्फिनिटिव बनेगा वो टू के साथ भी बन सकता है और बिना टू के साथ भी बन सकता है। ऐसी कंडीशन में इसका यूज निगेटिव, इंट्रोगेटिव या कभी कभी अफर्मेटिव भी हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, डू यू नीड do you need to go now? I don't need to meet him. One needs to be careful. So here you can find out these all examples. After that हम बात करते हैं नेक्स्ट, let us start our next मॉडल, that is dare. डेयर एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो कि स्ट्रॉन्ग एबिलिटी या टू बी ब्रेव इनफ होने को दिखाता है। और जैसे हम लोगों ने जिस तरीके से जो भी उपबंध हम लोगों ने बात किया इन द यूज ऑफ नीड, द सेम इज यूज्ड विद द डेयर आल्सो। मीन्ट डेयर भी प्रिंसिपल वर्ब भी है, जो कि हम सभी जानते हैं कि एक वर्ब के रूप में यू कैन नॉट डेयर बोल सकते हो, हाउ कैन यू डेयर टू डू इट, हिम्मत कैसी हो गई तुम्हारी। तो ऐसी केस में हम डेयर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे नया क्या है? नया है हम इसको डेयर को एक मॉडल के रूप में यूज करेंगे। और जब हम डेयर को मॉडल के रूप में यूज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी डू के बिना कंजुगेट करेंगे, उसमें यस फॉर्म या ईडी फॉर्म नहीं बनेगा। और हाँ, जो इन्फिनिटिव बनेगा वो विदाउट टू बनेगा। इसका यूज निगेटिव में भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव में भी हो सकता है, दो में हो सकता है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव में। एग्जाम्पल्स you can see over here, examples, he dare not take such a step, how dare you contradict me, he dared not do it, nobody dare defy me. In these all sentences you can find out that dare is here used as the auxiliary verb, that is the modal auxiliary. Okay friends, अगर आगे हम लोग डेयर को यूज करेंगे डू के साथ, नॉर्मल जिस तरीके से हम सब जानते हैं, वहाँ पे इसका ईएस फॉर्म भी होगा, ईडी फॉर्म भी होगा, और वहाँ पे इसका मतलब होगा टू चैलेंज। इसको हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव में यूज कर सकते हैं। ही डज नॉट डेयर स्पीक टू मी, आई डोंट डेयर टू टॉक टू माई फादर। सो इन दिस वे फ्रेंड, this is the end of the class today. I have tried to describe and explain each and every rule that is used in for the proper use of modal auxiliaries. Here are some exercises for you. Please do it. Thank you. Have a nice day.